morning everyone. Respected resource person, Ms. Apurva Pandey ma'am, respected principal, Reverend Father Jason, all the respected parents, respected teachers, and all of you present here. Today we have a very important session in our school that is on effective stress management. It is connected to the board exams, pre and post board exams. So a very important session. In general, we all see our day-to-day life is all the more stressful due to one or the other reasons. But then when our children are in the process of the board exam, or since the board exam is soon approaching, we can feel the stress on the students, our children, as well as on all of us. It is all the more seen that when the child is writing the exam in the exam hall, the child is already tensed or stressed. The equal amount of stress we feel whether we are standing outside the exam center or we are at home. Nowadays it is seen that even the nursery kids, the parents are so much worried and so much stressed with the results of the child. So for 10th and 12th class students and parents, and we all as teachers and the school management, everybody will feel the stress. How are the children going to perform? And that's why it's the first time a session has been organized for the parents, because only a person who can guide us with how to manage the stress and what are the effective techniques and how powerful it is important to manage stress, that a person like ma'am only can guide us. We all know that stress, it has all the more adverse effects on our mental and physical well-being. But then still we have the stress. So we are going to learn some techniques to learn how to manage stress. Maybe it is before the exam, and after the exam we are stressed regarding the result. So what is going to be the result, how much percentage your child is going to score. Equally, we as teachers also are stressed regarding the result of, as they are your children, they are our children also. So let us learn some techniques how to manage stress and how effective can it be to maintain the mental and physical well-being and our health also. So this, as it is a very special day, and we are praying for the students for the success, and so that the students score maximum marks and get good results. We have this session, and to make this session all the more beautiful, it is because of your presence. And let us ask Almighty God to give us a peace of mind to pray to God so that our children are good in terms of their health, mentally, physically, and we wish them best wishes so that they perform very well in the board exam. So may I request our choir group to come and sing a prayer song. हमको मन की शक्ति दे. हमको मन की शक्ति देना, बल विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद मुझे शक्ति देना, बल विजय
Thank you, teachers. So, they were the 10th class teachers. Neena ma'am, Kirti ma'am, Vaishali ma'am, Geeta ma'am, and Shikha ma'am. And thank all the parents also for joining in the prayer song. Now, let me introduce the resource person of the day to all of you. Today's resource person is Miss Apurva Pandey ma'am. She is the director and principal of the Chamnawad E-Vidya Mandir, Vardha. She is also the Deputy District Training Coordinator for CBSE COE Pune. She is the Additional Secretary for Nagpur Sahodaya School Complex, Vardha and Hinganghat. She is the Master Trainer for CBSE COE Pune. Her objective is to ensure the overall success of the school by using problem-solving skills and entrepreneurial tactics to create school policies that are firm, fair and consistent so teachers and staff can enforce them. Her educational qualification is she has a bachelor's degree in science with physics, chemistry and mathematics as the subjects. She is also having a master's degree in English literature and BA, and she is a certified career counselor. She has a vast experience of 27 years in education sector. She has served as secondary science teacher and coordinator for training and development wing in Jain International School, Nagpur. She has also served as the secondary science teacher in Bhavan's Baby Vidya Mandir, Civil Lines, Nagpur. She has also coordinated for various science-related activities at inter-school level, inter-state level and also at the national level. She has served as the secondary supervisor in St. Xavier's High School, Nagpur, supervising the standard of teaching, discipline, directly coordinating with the principal. She has also served as the contributory lecturer in Chitrakala Mahavidyalaya, Nagpur, teaching communicative English for 5 years. She is also a resource person for online trainings for teachers on behalf of the CBSE. She has participated in Principals Education Conference. She has attended workshops on emerging trends in life skill education, Indian context, organized by Council for Teacher Education, Maharashtra State at Nagpur. She has also participated in Capacity Building Program, CCE, organized by the CBSE. She has attended career counseling training workshops conducted by Jnana Prabodhini Sanshodhan Samstha, Pune. She has participated in workshop on pedagogical planning organized by Sahodaya School Complex many times. Her other responsibilities shouldered are she was the evaluator for the evaluation of CBSE answer sheets for science. She has also been the observer for NEET, CTET and the board exams. She was also the flying squad member for the CBSE board exam. So, to welcome such a well-trained master trainer of CBSE, may I request our principal, Reverend Father Jason, to welcome ma'am with the floral bouquet. Thank you, Father. As the resource person and master trainer, she has taken CBSE trainings on different subjects like classroom management, stress management, adolescent education, upholding ethics and integrity in schools, life skills, experiential learning, happy classrooms, implementation of NEP 2020, master trainer for BOXO and master trainer for school health and wellness program. So you can understand that vast knowledge about so many subjects. So hearty welcome to all of you and a special welcome to Ms. Apurva Pandey. Thank you. Actually, it didn't take much time. Just I had this idea, and the idea came from teachers that we need a resource person to talk to the parents because we are getting closer and closer to that big thing, the board exams, stress. Well, it can naturally be expected. But then there is something that I usually tell my students. We are not meant to be stressed. We are meant to be free. Azadi, freedom. This is something that we have experienced. We have to experience. We are not meant to live under stress. We have to find a way to
of stress. Stress, I feel, is an energy and it can be converted into positivity. I tell my students that. And I know you as parents, caring parents, loving parents, you are eagerly waiting for that big thing to happen, the board exams, and you need to be free of stress first. And this lady, the resource person, the one who is going to talk to you, she had come here before too. It was a wonderful session for the teachers, to motivate the teachers, and she did a wonderful job. And that's what made me and my teachers to decide on her. She shall be the one to talk to you. I assure you one thing, at the end of the session, you will feel a lot of freedom. You will have a lot of insight how to face the days that are going to come. God bless you all. So first of all, thank you, Father, for giving me an opportunity to be here. Thank you for welcoming me. आप लोग आए इसलिए शायद ये सेमिनार आज possible हुआ. I will not say I am expert, but I have conducted many. I have conducted it this kind of session on behalf of CBSE for all the parents in Mumbai, Goa, Diu, Daman, Satara, Solapur, Sangli, everywhere. So CBSE also has this module, a kind of module. Of course, this is my own generated. बट ऐसा ही मॉड्यूल सीबीएसई का भी होता है जहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पेरेंट्स से बात होती है. सो आई जस्ट सजेस्टेड व्हेन आई हैड कम कि हाँ पेरेंट्स के लिए हम कुछ कर सकते हैं. फादर ईगरली सेड वी कैन डू इट फॉर पेरेंट्स. तर मी मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश तिन्हीमध्ये बोलणार. लेट्स कम टू अ पॉइंट वेअर सुप्रिया मॅमने ऑलरेडी आपल्याला सांगितलं स्ट्रेस. आवर लाईफ इज ऑल फुल ऑफ स्ट्रेस. Everybody has stress, yes. Big amount or small amount, but there is stress everywhere. Where does it come from? It's in the air. It's everywhere. Air is everywhere. It's KG1, first standard. Where is air? And the child writes air is everywhere. So where is stress? So stress is everywhere. Stress is present here. Stress is present in the examination room. Stress is present in the tuition classes, wherever we go on the road, everywhere, stress is everywhere. But what do we do with this stress? Do we ignore it? Do we live with it? Or we find out ways to cope up with stress? आपण स्ट्रेस आहे म्हणून आपण जगतो की आपण सांभाळून घेतो स्ट्रेसला. की माहितीच आहे स्ट्रेस आहे, रोडनी जाणार, माहितीच आहे स्ट्रेस आहे. गेस्ट येणार तरी लेडीजला स्ट्रेस असतो की घर आवरायचं आहे, स्वयंपाक करायचा आहे, वॉट एव्हर ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड वॉट एव्हर. ते नेहमीच एक प्रकारचा स्ट्रेस. मुलं परीक्षेला जाणार म्हणजे स्ट्रेस. बच्चों की एग्जाम है तो स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इज ड्यू टू वेरियस रीजंस. यू नेम इट एंड स्ट्रेस इज देयर. Now we were born with some amount of stress. No, we were not born with stress. Stress is something which has been induced with our growing age. As we started aging up, stress started coming to us in different forms. With teenagers, then we became adults, and then now parents, now of course children coming to 10th standard and 12th standard. So everybody says, तुमचा मुलगा 10वीत आहे ना? मग तुम्ही तर सगळं बंद करून दिलं असेल, मग तुम्ही हे केलं असेल, मग तुम्ही टीव्ही बंदच करून दिला असेल. एक्सपिरियन्स विल शेअर. असं झालं होतं आणि टीव्ही तर बिलकुल मोबाईल तर हा फेकून द्यायचा. जो आपला अँड्रॉइड मोबाईल आयफोन्स यू नीड टू शिफ्ट समथिंग लाईक ए Nokia phone which was those keypads and there's no touch screen available. So people will start giving you certain sermons and do this and do this, and this is not the way, this is the way. But we live with those comments also, and now we are on the juncture. We are in the month of January, wherein I think board exam timetable father must have, the school must have shared, and we know that exam is starting from 14th of February. For your children, maybe other papers, the first paper is on 14th, but I think for your children it is 21st. Hindi, Marathi, those optional subjects are there.
So February means you have one month, 10 days, 1 month, 10 days or something. Okay. So now this 1 month, 10 days also are like each day becomes very crucial. Hey, हाँ एक महीना इतना फास्ट जाना, और पूर्ण में तुम्हें स्ट्रेस वगैरह रहना, चाइल्ड also parents also. So how time flies that we don't know, and stress keeps on mounting. आता तुझी परीक्षा आहे, आता तुझी परीक्षा आहे, आता हे नाही करायचं, आता ते नाही करायचं. People will tell you 2 बदाम खायचे, मग 4 खायचे. शांत पुष्पी, you know, after a few days, Hidra will give one advertisement. Front page, within the line, एक advertisement देना. वो शांत पुष्पी से दाम. They do it, marketing tactics. So people start buying it like anything, and then other, they say that the brain sharpens, but certainly not. These things overnight don't make wonders. Overnight things don't work. But let us see, we have everything and we try to make most of it. हम लोग सब कर लेते हैं, बादाम भी खिलाते हैं बच्चों को, और कुछ सिरप रहता है वो भी देते हैं, हेल्दी डाइट देते हैं, आज ये खाना है वो खाना है. तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है और यही सही करना है या नहीं करना है. That we will just discuss. I'm not somebody very great, but of course I have brought up my son. He is into IT. He is working for a multinational company at the US company called Goldman Sachs, and he has been a consistent topper for 10th, 12th, for MHCT he was a topper, and he was a topper for his BTech course which he did from NIT Nagpur, VNIT. He appeared for this UPSC exam. He cleared his prelims. So ऐसे कोई भी नहीं बता रहा है, जो मैं बता रही हूँ वो ऐसे नहीं कि कुछ पता नहीं है और ये बोलने आ गए हैं. तो I was just clearing that I have gone through this phase. The phase you are in, I think I was sitting there. जब ऐसे कुछ सेमिनार होता था तो मैं नागपुर, I stay in Nagpur, so जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आता है कि there is a seminar, I was the first one to see the gate. I should get entry. Free रहता है तो entry possible नहीं होती है. So such kind of workshops we keep attending, listening, learning from those. So this is, I think, one attempt which the school has made, and I think we should make use of it. So let's come to the next slide. Stress is in our mind. We have stress, and stress is because we have those fears, those kind of emotions related to exam. We are talking about, if we are talking specifically for the exam. एग्जाम का माहौल है, शांतता, बच्चे देख रहे हैं और वो इन्विजिलेटर बड़े बड़े चश्मे लेके दैट काइंड ऑफ थिंग. ऐसे हमारे समय में ऐसे होता था तो हम सोचते कि वैसे ही इतना भयान ऐसा शांतता एंड दैट काइंड ऑफ फीलिंग. ओके, तो एग्जाम सेंटर के तो ऐसे बहुत इतना जो हमारे ज़माने में होता था वैसे नहीं होता है, बिकॉज आई हैव बीन टू फ्लाइंग स्पॉट ड्यूटी. फ्लाइंग स्पॉट मीन्स CBSE gives phone call and they tell you that you need to be at the center. Nobody knows. Even for that matter, my driver would not know where I'm asking him to take. So it is so confidential, and at that particular moment you need to be there at the center. So a lot of things have changed for the betterment to keep in transparency. CBSE has evolved all these years and changes have been made. Now there are certain stressors. Stress है तो stressor है. So stressor can be internal stressor through our body. It could be outside stressor. That stressor comes from the society. एक WhatsApp ग्रुप होता है फैमिली का, हैप्पी फैमिली वगैरह नाम रहता है, तो वहाँ से सुबह से वो थम्स अप आणि आता प्रिलिम्स झाली, आता मग आता बोर्ड एग्जाम, सो 8 दिन पहले से वो चालू हो जाते हैं, माहौल बनाते हैं. जो माहौल में हमको भी लगता है कि वापस समथिंग बहुत कुछ ऐसे कुछ भयानक होने वाला है जिसके लिए हमको इतना सारा बेस्ट ऑफ लक दिया जा रहा है. ऑफ कोर्स दीज आर ऑल गुड विशेस दैट कम टू यू, बट एक स्ट्रेस बनाने वाले बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, एंड वी ऑफ कोर्स फाइट आउट दीज फैक्टर्स. हम फाइट करते हैं वो फैक्टर्स से और आगे बढ़ते हैं. एग्जाम का दिन भी आ जाता है, बच्चा एग्जाम को जा रहा है तो वो फीलिंग होती है जैसे कोई युद्ध वगैरह, दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि क्या होने वाला है. देन साखर तयार आणि सकाळी उठून पूजा वगैरे
डिफरेंट रूटीन भी चेंज कर देते हैं। पहले दिन रात को रूटीन चेंज, खाने का चेंज, एवरीथिंग टाइमिंग चेंज। नाउ वी डू दैट बिकॉज we take it as an opportunity that a child has got, and it is maybe we think that is the last opportunity कि ये opportunity है तो हम सब सही करना चाहते हैं। But let me tell you, we should not change radically. हमें इतना भी change नहीं करना चाहिए कि हमारा routine भी हम change कर दें, because if you change your routine, lot of things change. So I think first, the very foremost step is the stress within us. सबसे पहले parental stress के बारे में बात करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस खुद से, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ज्यादा हम एक्सपेक्टेशंस वी कीप इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। अगर यू आर डिसएग्री, अग्री, बिकॉज वी फील कि मी है करू शकली नहीं, मैं ये कर नहीं सकी या नहीं कर सका, आई थिंक आई टेक इट एज कि माय चाइल्ड शुड बी एबल टू डू इट। somehow I feel I was not able to go to a very big coaching class. So अभी आपको शायद कोचिंग क्लास के भी फोन आना चालू हो जाएंगे, कोई आलन, कोई iPad, कोई XYZ जो भी चंद्रपुर में है, वहाँ से फोन आएंगे, फिर एक माहौल भी बनेगा, फिर एग्जाम के लिए आओ, फिर डिस्काउंट देंगे, तो वो एक अलग स्ट्रैटेजी से वो लोग काम करते हैं। So first is our own pressures, how we deal with our own pressure, खुद की अपेक्षा, बाकी लोगों की हमसे अपेक्षा कि तुझा मुलगा है, कि आपका बच्चा है, ये तो बहुत ही अच्छा करेगा, तो वो एक प्रेशर दे देते हैं। फिर हमको भी लगता है हाँ अरे पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे, और एक डाउट, मतलब इंस्टेड ऑफ दैट फियर, वो इतने फियर बाउंड हो जाते हैं। एंड ऑल दिस स्ट्रेस समटाइम when you come home and you see the child not studying, तो उसके ऊपर गुस्सा आता, एक महीना हो रहा है, ये क्या शुरू है, ये क्या कर रहे हो, मोबाइल देखो, ये करो, वो करो, वो करो। तो हमारा जो स्ट्रेस होता है, तो हम सबसे पहले वो बच्चों पे ट्रांसफर, इमीडिएट ट्रांसफर, यहाँ पे बाहर है तो लगे फोन करो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, चलो बैठो पढ़ाई के लिए, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं खाना खा रहा हूँ, जल्दी से खाना खाओ, बैठो पढ़ाई के लिए, एक महीना बाकी है। तो इस टाइप का पेरेंट्स स्टार्ट डूइंग दैट, यू डू इट और नॉट, हम वो क्वेश्चन ही नहीं है, और हम लोग ऐसे करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस होता है वी ट्रांसफर इट टू द चाइल्ड, एंड द चाइल्ड ऑल्सो स्टार्ट्स गेटिंग स्ट्रेस्ड बिकॉज यू हैव गिवन ऑल दैट स्ट्रेस। पहले तो उसको भी खुद से अपेक्षा होती है, if the child comes to 10th standard, a reasonable amount of stress, peer pressure, teachers give certain pressure, school pressure, because school wants the children to perform. So they might follow the child and ask, have you prepared this, have you done this, prelims 1 result लेकर जाओ, prelims 2 का result लेकर जाओ, and then the result will show that the child is not very good in suppose for example maths. So child is under stress, आपने एक स्ट्रेस दे दिया, बोर्ड एग्जाम को जो लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया है उसका भी स्ट्रेस हो गया। हाउ वुड द चाइल्ड मीट दिस स्ट्रेस? क्या मैकेनिज्म है, क्या कोई फॉर्मूला है, लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ, इज देयर अ फॉर्मूला टू कोप अप विद स्ट्रेस, और इज इट समथिंग दैट इज टेलर मेड, कस्टमाइज्ड? My own needs, because stress, everyone battles with stress, but everyone has a mechanism for stress. There are various mantras for stress. अब YouTube पे जाएंगे, एक स्ट्रेस मंत्रा डालेंगे तो बहुत सारे टेक्निक्स आ जाएंगे, पर क्या प्रैक्टिकली हम लोग वो रोज कर पाते हैं? YouTube, everybody is using YouTube, अब डालते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, फिर एक दो वीडियोस देखते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं, योगा बोलते हैं, पर पॉसिबल है क्या कि रोज आप योगा करें? जो योगा रोज करते हैं उनको पता है बेनिफिट्स ऑफ योगा, जो मेडिटेशन रोज करते हैं, आज मैंने आपको बताया मेडिटेशन एक तरीका है, योगा एक तरीका है। हैविंग अ गुड फ्रेंड, husband wife of course are very good friends, but if you have other friends also, you can share your worries, you can share, एक शेयरिंग होता है, उससे काफी सारा स्ट्रेस निकल जाता है। आई थिंक दोज हु आर होम मेकर्स,
विल बिलीव। मैके में फोन कर लो और बता दो आज ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ, तो आधा स्ट्रेस वहीं पे खत्म। फिर उसके बाद नाउ आई एम एब्सोल्युटली ओके एंड नाउ आई कैन हैंडल एवरीथिंग। तो जिनकी मम्मी है तो फिर मम्मी को बता दिया, भाभी को बता दिया, मैके में किसी को फोन कर दिया या कोई फोन अ फ्रेंड फॉर दैट मैटर, और बहुत 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 बोल दिया ऐसे साल दस साल एंड आई एम फ्री। So a friend also is a very good stress buster. So I think everybody should have somebody whom you can talk. Even the child needs to have parents or any other friend whom you can share your worries, anxiety, the kind of pressure that is there. उसको बोलने के लिए कोई chance मिलना चाहिए. Let's move on to the next slide. Now, this talks about eustress and distress. Not all stress is bad. Certain amount of stress is good. That is called as eustress. एक कंपटीशन के लिए स्ट्रेस का माहौल तो होना है, पर बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस. Distress. And now what this distress will do, which will make the child forget. जो याद किया था वो सब बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस हो जाता है, बैड स्ट्रेस. गुड स्ट्रेस मतलब एग्जांपल मैं अगर देती हूँ तो कोई फैमिली मेंबर की शादी तय हो जाती है. स्ट्रेस तो है, शादी है तो स्ट्रेस है, बट इट इज हैप्पी स्ट्रेस. अ न्यू बॉर्न चाइल्ड कमिंग टू द फैमिली, या किसी की शादी फिक्स हो जाती है, या घर का हाउस वार्मिंग होता है, घर का वास्तु पूजन होता है, तो स्ट्रेस है. नए घर में जाना है, स्ट्रेस है, बट ये पॉजिटिव स्ट्रेस है. नेगेटिव स्ट्रेस इज द स्ट्रेस व्हिच यू कैन नॉट टेक इट, इट स्टार्ट्स शोइंग ऑन द बॉडी. बीपी है, शुगर है, हेडेक हो रहा है, अल्सर्स होते हैं पेट में, डाइजेशन नहीं हो रहा है फूड का, वेट गेन है, वेट लॉस है, पैल्पिटेशन है, डायबिटीज है. All this is due to stress. Now, some amount of stress is beneficial. लेकिन हम लोग कुछ काम ही नहीं करेंगे. कुछ amount of stress जरूरी है कंपटीशन के लिए, but excess जब stress हो जाता है, when you're not able to manage stress, and therefore stress management workshops or yoga, meditation, Zumba, dance class, music class, all this has started coming into the flow now. तो यूट्यूब पे गाना सुनना, जुम्बा करना, या कोई क्लासेस क्लासिकल म्यूजिक सीखना है, कीबोर्ड है, गिटार है, some there should be some way in which you are able to be away from stress. क्योंकि वो शायद हम किसी के सामने हैं तो आपको वो भूल जाएंगे. अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा उसके कॉर्ड्स पे, उसके स्ट्रिंग्स पे, कहाँ पे प्रेशर देना है, कहाँ नहीं देना है. तो योर माइंड विल बी डाइवर्टेड समवेयर. When you are doing yoga, you will be more concentrated on your body. When you are doing meditation, you will be concentrating on the breath. सांस लेना, सांस छोड़ना, कपालभाति है. मेडिटेशन करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं? करते हैं. ओके, वेरी गुड. सो मेडिटेशन है तो हम उसके ऊपर सांस पे काम करते हैं. सांस को लेना है, किस तरीके, कौन से लय में सांस को छोड़ना है. So meditation, yoga, all these things certainly help us in order to keep ourselves away from stress. So eustress, it gives you positivity, it gives you energy, and it can be short term. Eustress can be short term, लेकिन किसी की मैरिज फिक्स होना short term. जब तक मैरिज खत्म हो गई तो वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है. अब न्यू बॉर्न कमिंग टू द फैमिली, 2-3 दिन वो स्ट्रेस रहता है, बाद में सब एडजस्ट हो जाता है और स्ट्रेस खत्म हो जाता है. ये जो डिस्ट्रेस है, ये लॉन्ग टर्म, यूजुअली इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. लाइक द चाइल्ड इज इन 10, 11 एंड 12, देन फर्स्ट ईयर कहाँ मिलने वाली है एडमिशन, वो भी स्ट्रेस है. इफ यू आर सेंडिंग द चाइल्ड आउट, अगेन देयर इज स्ट्रेस. सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल दिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेस? कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए, कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए, और उसके बारे में हमको पता भी रहना चाहिए. Now stress comes from all these factors. We have discussed them, just I will read them. Pressure,
expectations, my child will score above 90. सभी पेरेंट्स को लगता है, बच्चे को भी लगता है. कभी कभी अनरियलिस्टिक रहते हैं एक्सपेक्टेशंस. हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए. यू नो दे से एम एट द स्टार्स. ऊंचे एम रहने चाहिए, पर इतने भी ऊंचे ना हो कि वो आपको प्रेशर दे दे, वो स्ट्रेस दे दे. सो योर गोल शुड बी रियलिस्टिक जो हम अचीव कर पाए. कॉम्पिटिटिवनेस, तेरी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसे. कंपैरिजन विद अदर्स, तेरा बेटा मेरा बेटा, तेरी बेटी मेरी बेटी, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं फिर भी ऐसा है. प्रेशर. फियर ऑफ रिजेक्शन, 11th स्टैंडर्ड पे एडमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं रिजेक्शन होगा तो बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा. फैमिली में मुंह दिखाने के लिए वगैरह वो सब बड़े बड़े हिंदी मूवी के डायलॉग्स की मला चेहरा दाखवायला लास्ट वाटली किंवा मला मैं कहाँ मुंह दिखाऊं, यू नो दैट काइंड ऑफ डायलॉग. पुअर टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस कम्स फ्रॉम पुअर टाइम मैनेजमेंट. यहाँ पे बहुत बच्चे ने टाइम वेस्ट कर लिया एंड देन एकदम दिसंबर के बाद याद आ गया अरे बाप रे बोर्ड एग्जाम है. सो द टाइम इज नॉट मैनेज प्रॉपर्ली. फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, कम नंबर आए, सब लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं. देन डोंट हैव मच टाइम टू स्टडी. लास्ट मोमेंट पे हिला दिए पेरेंट्स ने स्कूल में, आता अभ्यास करा. सो द लास्ट मोमेंट. Have other things happening in their life. Other things happening in their life, there can be, you know, certain illness, or there can be some problem at home which the entire family is going through. Not the child, but एक family का कोई problem है जो ऐसे आते हैं कि आप लोग सब लोग मिलकर उसको संभाल रहे हैं. Want to do really well. मुझे अच्छा करना है, एक बच्चे की सोच है, पेरेंट्स की सोच है. पुअर स्टडी हैबिट्स, पता ही नहीं फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, दैट द चाइल्ड डजंट नो. एसएसटी को किस तरीके से पढ़ना है, द चाइल्ड डजंट नो. हाउ मैथ्स हैज टू बी प्रैक्टिस, द चाइल्ड डजंट नो. बिकॉज ईच सब्जेक्ट हैज गॉट अ टेक्निक. इफ आई एम अ फिजिक्स टीचर, आई एम अ फिजिक्स टीचर, सो बेसिकली फिजिक्स cannot be studied like bio. Physics is something that is related to concepts. Bio is something that is, of course, concept, but terminology is very important. In physics, application is very important. If I'm talking about refraction or reflection of light, application stands more relevant as compared to definition of what is reflection or what is refraction. So each subject needs to be handled in a different manner. Because you cannot handle economics as you are handling geography. Because each subject will have a terminology, how the paper has to be written, how it has to be sorted out in the sense point wise कौन से subject में answers लिखने हैं और कौन से subject में keywords को underline करना है. If it comes to a science paper, the child should know that I have to underline the keywords. Now what are these keywords? I think you must have understood. Keywords are those important words in the answer which make the answer. For example, मुझे लिखना है definition of reflection. So the keyword is bouncing back. It should be just underlined with the same pen which the child is using. So certain techniques that we use for learning, for understanding, for make and for presentation. A poor study habit आता है. How do you present your paper? So उसके लिए क्या बच्चे को प्रैक्टिस दी गई है. प्रेशर तो सब जगह से आएगा, but then whether we have approached it in correct manner or not, that is more important. Then the next point is past experiences of blanking out or performing badly on exams. ये भी आपने सुना होगा कि मुझे सब आता था एग्जाम में और मैं लिख नहीं पाया. जब बच्चे 7th 8th में थे, आपने करके भेजा था एक प्रॉब्लम, बच्चे ने सॉल्व किया था घर पे, एंड द चाइल्ड डिड नॉट डू द सेम प्रॉब्लम इन द स्कूल. आई वाज टॉकिंग टू द टीचर्स, आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस कॉल्ड एज कॉग्निटिव ब्लॉक. बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस और क्या होने वाला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जब हम चले जाते हैं तो हमारी ये जो मेमोरी होती है
सॉल्व करने की, ये चली जाती है, ब्लैंक हो जाती है ये मेमोरी। तो आपण घरी आल्यावर म्हणतो की तू ते घरी सॉल्व केलं होतं आणि तिथे तू का नाही सॉल्व केलं? तो बच्चा बोलता है, फिर कुछ बच्चा कवर अप करता है कि यू नो टीचर ने पेपर ले लिया, टाइम कम पड़ा, समथिंग लाइक दैट। और अदरवाइज चाइल्ड विल बी वेरी सिंसियर एंड से कि मला आठवलंच नाही। सो बेसिकली दिस इज अ डिसऑर्डर, दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लैंकिंग आउट। याद नहीं आना तब, आप एग्जाम हॉल के बाद याद आ गया, but during the exam when it was those 3 hours were very important hours, the child was unable to recall memory, calling, याद लाना पड़ता है, वो कहीं भी मेमोरी में रहता है, उसको लाना पड़ता है पेपर में लिखने के लिए। So that is called as a recall, recalling. So that recall memory blank हो गई, that is called as cognitive block in psychology, and this mostly happens with the science paper and maths paper. मैथ्स पेपर फॉर्मूला ही भूल गए तो आगे की स्टेप ही नहीं कर पा रहे हैं। फोकसिंग ऑन टू मच ऑन द आउटकम्स, क्या होगा, मैं बाहर जाऊंगा एग्जाम हॉल के, मार्क्स कम आएंगे, तो प्रेजेंट में ना जीते हुए बच्चा जाता है फ्यूचर में। टू मच आउटकम, क्या निकलेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फिर क्या होगा, फिर पेरेंट्स मुझे ऐसा बोलेंगे, तो बच्चा वो सब मेमोरीज में चले जाता है। Now, what is parents' role during exams? During exam stress, parents किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं ये चीजें? अब तो स्ट्रेस है पता है, क्यों है ये पता है, एज पेरेंट्स क्या पिक्चर्स दिखा रहे हैं, एज पेरेंट्स हम ये सब कर रहे हैं घर पे, हम कितना टाइम दे रहे हैं घर पे बच्चों को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन अ फ्रेंडली टॉक दैट यू कैन सी अ फादर डूइंग विद द चाइल्ड, क्या आप 10 मिनट 15 मिनट निकालते हैं बच्चे के साथ एज अ फ्रेंड? फादर्स आर स्पेशली आस्किंग, बिजनेस है, टाइम नहीं है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट ये भी तो क्रूशियल है ना बच्चे के लिए, ये एग्जाम में रोज तो नहीं आने वाली है। सो दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग, that kind of quality time are you giving to the child? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स, अग्री, बट उसके लिए कुछ तो करना होगा ना। जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हैं उनको किसी की जरूरत नहीं है। इफ योर चाइल्ड इज इन 90s and 95s, then you know the child is focused, the child knows what he or she has to do, and the story is over. The parents also not stress हो कर लेगा बच्चा, त्याला सगळं येतं तो बघून घेईल त्याचं। ऐसे भी बच्चे रहते हैं क्लास में। आई वाज टॉकिंग अबाउट यू नो देयर विल बी इन एवरी क्लास देयर शुड बी 5 to 10 चिल्ड्रन लाइक दिस हु हैंडल एवरीथिंग। पेरेंट्स का स्ट्रेस नहीं, पेरेंट्स को स्ट्रेस ही नहीं है, रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है। सो दिस काइंड ऑफ दोज आर कॉल्ड एज सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स। तो अगर हमने बच्चे को सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनाया है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया है तो स्ट्रेस आना ही है। तो इतनी सारी चीजें हैं इसको हैंडल करना है। तो पॉइंट नंबर 1 दैट आई वांट टू शो यू इज दिस काइंड ऑफ गिविंग टाइम टू द चाइल्ड। हाउ मेनी ऑफ अस डू दिस? वेरी गुड, ओनली 1 2 3 4 5 6 7 ओके, वंडरफुल। पर काही हाथ खाली है, घंटी बजनी चाहिए, अलार्म बजना चाहिए, यू नो आई शुड गिव टाइम टू माई चाइल्ड। किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। और इतना तो बनता ही है, यू नो, उसके बाद में पार्टी तो बनती है, पर अभी ये टाइम देना भी बनता है। हमने शुरुआत से किया है या नहीं किया है, और अब हमें थोड़ा सा वक्त निकालने, प्लस द चाइल्ड इज ऑल्सो गोइंग थ्रू स्ट्रेस। कुछ बच्चे बताते हैं, वो भी हम सिम्टम्स पे आने वाले हैं। अगर हाँ आपके बच्चे ने आपको बताया नहीं तो कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे चाइल्ड इज इन स्ट्रेस और नॉट? दैट ऑल्सो स्लाइड इज देयर। सिम्टम्स, बुखार के सिम्टम होते हैं, यू नो द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। बुखार कैसे आया समझ में आता है, अच्छा नहीं लगता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम बोलते हैं बुखार है।
बट अगर स्ट्रेस है द चाइल्ड डजंट नो द सिम्टम्स, द पेरेंट्स शुड नो द सिम्टम्स कि क्या है बच्चे के सिम्टम्स. द चाइल्ड डजंट टॉक टू एनीबॉडी, द चाइल्ड विल नॉट कम आउट ऑफ द रूम, द चाइल्ड विल यू नो आंखों से आंख नहीं मिलाना, पुअर ईटिंग हैबिट्स, खाना नहीं खाना, मन नहीं कर रहा है उन्हें, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों को लेके आपने ये नहीं बनाया ना तो मैं नहीं खाना पाऊंगा या खाना पाऊंगी. दैट काइंड ऑफ यू नो इरिटेबिलिटी जिसको बोलते हैं. कुछ नहीं मिला, मैंने यहाँ पे बुक रखी थी वो नहीं मिल रही है, उसके लिए बहुत गुस्सा करना कि मेरी बुक यहाँ से किसने हटा दी, या नॉट एबल टू एडजस्ट एट ऑल. All these signs will show that a child is in stress. And if this is happening with your child, then that indicates the child does want to say. बहुत बार हम नहीं बोलते हैं, मन में रहता है पर नहीं बोलते हैं. तो ये नहीं बोलते हैं तो फिर कैसे पता चलना चाहिए पेरेंट्स को? तो कुछ सिम्टम्स होने चाहिए. So all forgetfulness, कुछ भी नहीं करना, एक जगह बैठे रहना, पढ़ाई नहीं करना. आपके सामने किताबें हैं, आपको लगता है बच्चा पढ़ रहा है, पर आपने क्या सही में देखा बच्चा रियली टाइम इन्वेस्ट कर रहा है? कभी आपके पास जाके बाजू में बैठे हैं, वो बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल. मैंने आज ये वीडियो नया निकालते हैं, ये वीडियो वो साइट से आ रहा है, बहुत अच्छा है, नए तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, नया स्टडी मटेरियल इवॉल्व करते हैं. आज तक मैंने एस्टान से पढ़ाई की थी, आज मैं कोई ओसवाल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, एनी अदर बुक, एक नई किताब मार्केट में आई है, वहां से चालू कर दिया. स्टडी मटेरियल, चेंज ऑफ स्टडी मटेरियल. सो ऑल दिस हु विल मॉनिटर? आपको पैसे तो दे दिए बच्चे को लेने के लिए, बट आपने मॉनिटर किया ये फ्रीक्वेंट यूज ऑफ स्टडी मटेरियल, डिफरेंट स्टडी मटेरियल. एक ही किताब है एनसीईआरटी की, बट उसके रेफरेंस बुक्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के. आज ये कोई और बताता है, आज ना एमपीजी की ले लेना तो वो ये देना, आज होता है दिनेश कंपनी की है, होलीफेथ की है, इतने सारे हैं. चाइल्ड यू नो कीप ऑन चेंजिंग द स्टडी मटेरियल. सो ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट दैट द चाइल्ड इज अंडरगोइंग स्ट्रेस. सो वी नीड टू एज पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट आर वी गिविंग टाइम टू द चाइल्ड, क्वालिटी टाइम. अब बोलेंगे टाइम तो दे दिया, हम बैठे थे बच्चे के बारे में, ये टाइम नहीं देना होगा. 2 शब्द प्यार से बात किए. टाइम बहुत कम है, देखिए आपके पास 1 ही महीना है. अब 1 महीने में आप बोलेंगे कि आज से मैं चालू करता हूँ, तो आज से चालू कीजिए, उसमें कोई देर की कोई बात नहीं है. सिट विद द चाइल्ड, टॉक फॉर 10-20 minutes, टेल द चाइल्ड आई एम देयर टू सपोर्ट यू. कुछ भी हो जाए, आपको कम नंबर में आ जाए तो यू आर माई चाइल्ड, ज्यादा नंबर में आए तो आई एम योर फादर और मदर. रिलेशनशिप चेंज नहीं होने वाला है. बच्चे का परफॉर्मेंस जरूर बढ़ेगा विथ योर सिटिंग विद द चाइल्ड, सिटिंग विथ हिम, क्वालिटी टाइम देने से बच्चे का परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होगी ही. टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी, आई कैन गिव यू एश्योरेंस फॉर दिस, बिकॉज वो किसी और के लिए नहीं कर रहे ना. कितना भी बड़ा बिजनेस हो आपका, यू हैव अ बिजनेस एम्पायर, बट गिविंग टाइम टू योर ओन चाइल्ड of 20-30 minutes I think is not more that I'm asking you to do. Tips for parents, how they can help their child in studies. आप ये कुछ टिप्स बता रही हूँ मैं, आप उनको पढ़ सकते हैं इसको. Be familiar with your child's exam schedule. सबको टाइम टेबल बता देना चाहिए बच्चे का. नहीं तो पूछ रहे हैं, अरे तुझा पेपर कौन टाइम हो गया, fathers especially, na? कि mothers don't do that. Father, अरे तुझा पेपर केम आहे मला काय माहितीच नाही. नो, आपको एग्जाम शेड्यूल बच्चे का पता रहना चाहिए. प्रीलिम्स कब हो रहे हैं, कब पीटीएम है, कब फेयरवेल है या ब्लेसिंग सेरेमनी है. यू शुड नो. तो बच्चे को क्या दिखेगा, आपका इंटरेस्ट है उनमें. नॉट दैट यू आर गोइंग टू राइट एग्जाम, but at least the child knows that my father or mother cares for me.
मोबाइल में बच्चों के टाइम टेबल हैं? सबके पास है। सबको डेट्स याद है एग्जाम की? अगर मैं पूछूं तो फर्स्ट पेपर पता है, बाकी पेपर्स का क्या करेंगे? अब तो याद होने से हो जाना चाहिए। क्या हम क्विज ले पेपर्स का? कौन सा पेपर है 10th का? पेरेंट हैज ऑलरेडी रेज्ड हैंड सेज दैट ही नोस एवरीथिंग। चलो वेरी गुड। और किसको पता है सब पेपर्स डेट्स? डेट एंड एग्जाम, डेट एंड एग्जाम। एंडिंग डेट पता है? Starting date or ending date, which is नहीं पता। Okay. So I think this gives the child little motivation कि मुझे आप में इंटरेस्ट है, मुझे आपसे कुछ करना है, and you and me both are together in the same boat. बच्चे को ऊपर लिखना है, पर आपका इन्वॉल्वमेंट बच्चे को दिखता है, you know somebody cares for me, and that kind of caring कि पापा को तो पता है मेरा कौन सा पेपर है, तर त्याला एक शॉक होतो की हाँ म्हणजे everybody is into the same boat. सगळेजण एकाच नावेत सवार आहे. अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स. साल भर में तुमने कुछ नहीं किया, आता तो ऐसे करता है, अब ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो. अब ये 1 महीने में ऐसा बहुत कुछ होने नहीं वाला है. आपने बच्चे को टाइम दिया, मोटिवेशन दिया, गाइडेंस दिया, दैट इज, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन आर्ग्यूमेंट्स. जो हो गया वो हो गया. अब उसको निकाल तो वो जून जुलाई आ सकता है कि आपने कितना भी बहुत कोशिश की, यू कैन नॉट गो बैक. सो अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड आर्ग्यूमेंट्स विल बी रिगार्डिंग स्टडीज. आर्ग्यूमेंट ना करें क्योंकि उसमें आपका ब्लड प्रेशर, बच्चे का मोटिवेशन, एवरीथिंग विल कम डाउन. 2-3 घंटे बाद तक वो बात दिमाग में रहती है, आपके भी और बच्चे के दिमाग में रहती है. Studies have made that when the emotions are negative, I told the teachers also, when the emotions are negative, no studies can happen. आपने आपको गुस्सा तो डाल दिया बच्चे के ऊपर, but believe me, research has been made for another 3-4 hours. Nor you, nor the child can study anything and child will remember. बच्चा बैठा है बुक्स के सामने, आपको तो लग रहा है कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है, तो खूब अभ्यास करते रहते हैं, 3 पर्यंत अभ्यास करते हैं. तो नेगेटिव इमोशंस जब है, इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट पार्ट मैंने लिखा है कि अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिकॉज बेसिकली दिस इज नेगेटिव इमोशंस. And no studies, no remembrance, no recall, no application, no what's question, no what's question, nothing. Nothing can happen. And now, as you know, CBSE has come up with competency-based questions. 50% of the paper is competency-based, where you have case studies, where you have MCQs, where you have case-based questions, assertion and reasoning questions. तो ये पेपर तो वैसे डिफिकल्ट होते जा रहा है. पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. If the child has not prepared for HOTS, higher order thinking skills, then it is going to be very difficult for the child. Have meals with the family. जो देर से पेरेंट्स जॉब की वजह से बाहर रहते हैं, तो फैमिली के साथ खाना खाएं, तो the family that eats together, stays together, so that kind of thing. Avoid burdening with your own stress. खुद का स्ट्रेस बच्चों पे डालते हैं. Make sure they get a good night's sleep. अब बच्चों के even my son, for that matter, he remains awake till 2 o'clock because he is into IT and has to collaborate with companies outside all over the globe. So, but I don't know आपके बच्चे का क्या रूटीन है, but if the child is लेट तक पढ़ना, अगर उसको पसंद है या पढ़ रहा है और आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, तो कंटिन्यू दैट बिकॉज यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग. इफ आई टेल यू कि बच्चे 5 बजे उठना चाहिए, तो अगर बच्चा 2 बजे सो रहा है, तो मैंने अगर 5 बजे बोला तो वो इरेलेवेंट कहना आएगा. सो देयर विल बी 2 ways with the child sleeps, early sleeper or a late sleeper. तो आई थिंक यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंग टू दैट. बट आई थिंक मॉर्निंग स्कूल रही है बच्चों की साल भर, तो बच्चे सुबह ही उठते हैं 6 o'clock. तो वो चेंज ना करें फिर.
अगर बच्चे को 6 बजे की आदत है, अगर ये स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, 8 बजे रिपोर्टिंग था स्कूल का, 7:30 बजे उसे ब्रेकफास्ट करके दूध पी के वटेवर टोस्ट खा के निकला है बच्चा यहाँ पे, तो द चाइल्ड हैज टू गेट एट 7 मैक्स टू मैक्स। तो वो चेंज ना करे वो रूटीन, क्योंकि अभी छुट्टी हो जाएगी बच्चों को बिलियंस के बाद 15 दिन, तो 15 दिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं कितने भी बजे उठ सकता हूँ। चेंज ना करें, डोंट चेंज द शेड्यूल, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ हो जाती है। वॉशरूम, गोइंग टू वॉशरूम, ऑल दीज थिंग्स, द डाइजेशन ऑफ द फूड, एवरीथिंग इज अफेक्टेड। बायोलॉजिकल क्लॉक, मेटाबॉलिज्म पे। सो आपका जो मील्स का टाइम था स्कूल में, जैसे उनको टिफिन का टाइम 11 o'clock था, 10:30, 11 something। So breakfast or heavy lunch, whatever, heavy breakfast, what you are giving the child, maintain the same for another 1 month. उसके बाद after that you have time that you can change, but don't change things till then. कभी तो रिलैक्स है, स्कूल नहीं जाना है, तो बच्चे को 10 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है, डोंट डू दैट, बिकॉज वहाँ पे एग्जाम हॉल में केंद्रीय विद्यालय में इनको रिपोर्ट करना है, तो इनको 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना है, 9:30 रिपोर्टिंग है। तो अगर 9:30 हम लोग 10 o'clock के बाद तो अंदर लेते नहीं, पर हम भी फिर भी हाफ एन आवर भीतर में पहले बोल रही हूँ, 9:30 अगर रिपोर्टिंग है तो बच्चा चंद्रपुर में भी रहते हैं, तो एटलीस्ट 15-20 मिनट्स तो लगते हैं पहुँचने के लिए। तो अगर बच्चे को आदत दिला दी 10 बजे उठने की, तो यू कैन अंडरस्टैंड उसकी मॉड्यूल ही खराब हो जाता है। फिर अवे फ्रॉम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, नेटफ्लिक्स, वो जो कनेक्शंस रहते हैं, नेटफ्लिक्स एंड ऑल दोस, सी हाउ यू कैन कीप योर चाइल्ड अवे। एक मोटिवेशन देते रहे कि यू कैन डू वेल, यू कैन डू वेल, उस तरीके का जो मोटिवेशन रहता है तो बच्चा कर लेता है। बहुत मोबाइल रख तो दुनिया है, तो एक सीरियल बच्चे पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा ना स्कूल से आया है। आई वाज टॉकिंग टू 9th standard पेरेंट्स यस्टरडे, तो बोले बच्चे बहुत थक के आते हैं तो हम उनको आधा घंटा बोलते हैं मोबाइल कर ले। अभी मतलब कहाँ से आए बच्चे, मतलब चाइल्ड रिलैक्सेशन, व्हाट इज दिस रिलैक्सेशन, सो मोबाइल को चाइल्ड का हाथ बना के, व्हाट इज दिस, मेरे को मुझे समझ में नहीं आया, बट दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड, दे से दैट द चाइल्ड शुड बी विद गैजेट्स, सो दैट इज टू बी इन, उसको इन कहलाते हैं वो कि आधा घंटा तो बनता है मैडम, आधा घंटा तो खेलने देना ही पड़ेगा, जिसे खाना देना ही पड़ेगा, तो वैसे ही मोबाइल तो देना ही पड़ेगा। खाना देना मतलब कि खाना इज लाइक समथिंग टू कीप अस अलाइव, बट एन मोबाइल कैन नॉट टेक अवे प्लेस ऑफ खाना, तो ये मोबाइल तो देना ही पड़ेगा। बोले मैडम आधा घंटा तो मोबाइल खेलेगा बच्चे, उसके बाद खाना खाता है। People have different ways, but keep your children away from digital distractions, Netflix connections and all those things. YouTube, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बच्चे का टाइम, बिकॉज मोबाइल बच्चे का टाइम ले रहा है, छीन रहा है टाइम। So as far as possible, digital detoxification. आप भी अगर एक दिन मोबाइल के सिवा रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ व्रत वगैरह करते हैं उस दिन, व्रत वाले दिन या फिर उपवास वाले दिन या मार्गशीर्ष गुरुवार वाले दिन, एक दिन तो कुछ घंटे तो मोबाइल से अलग, incentives and rights. अगर मुझे 90% आया तो मैं iPhone 15 Pro Max straight right. Why are you doing that? गलत आदतें। तुम्हारी एग्जाम हो जाएगी ना तो अपन कश्मीर जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, ये क्यों बता रहे हो ये सब? Let the child perform. It is the child has to perform. अगर आपकी अपेक्षाएं बच्चे ने करना तो क्यों आप उसको, you are attaching some incentive and price to it. आपको खुशी हुई, आपने कुछ उसको लेकर दिया, पर ये आया तो मैं दूंगा, ये बात गलत है। हम लोग करते हैं कि छोटे बच्चों से करते हैं, मोबाइल दे देती है मम्मी और खाना खिलाती है। आजकल की मम्मीज तुम मोबाइल पर कार्टून देखकर मैं खाना खिलाती हूँ, रॉन्ग, बट दिस इज मोर वैल्यूएबल देन व्हाट वी डू। बी अ साउंड
sounding board. What the child says, absorb it. कभी गुस्सा भी बच्चा कर लेगा तो ठीक है, absorb कर लो वो चीज को, क्योंकि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस नहीं आने चाहिए. बी अवेलेबल फॉर द चाइल्ड. हमारे एजेंडाज रहते हैं, अब सबकी न्यू ईयर पार्टीज खत्म हो गई है शायद, तो हमारे जो किटी पार्टीज हैं या जो भी आउटिंग्स हैं, कीप देम लिटिल अवे, बी अवेलेबल फॉर द चाइल्ड एंड मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट एंड रूटीन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया. पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आर ईगल्स, ऑक्टोपस, पांडा, चीता और लायन, ये 5 प्रकार के पेरेंट्स हैं. 5 टाइप्स ऑफ पेरेंट्स हैं. नाउ आप किसमें भी आप पांडा है कि क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा, मैं तो अभी बताने वाली हूँ. ठीक है. ईगल, ईगल वाले जो पेरेंट्स हैं, खुद को देखो आप ईगल हो कि नहीं हो. हाँ, ईगल्स, parents who are eagles want their children to excel at academics. Expect children to be topper at school. Marks are very important. Parents take a lot of interest and efforts in the academic progress of the child. ठीक है. Education is everything. Study बताया है 40% metro parents होते हैं, 60% नॉन मेट्रो के पेरेंट्स ईगल्स होते हैं. अब ऑक्टोपस पे चलते हैं. अब ऑक्टोपस पेरेंट्स जो रहते हैं, दे गिव इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, एनरोल चिल्ड्रन इन मल्टीपल एक्टिविटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स, कैलीग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग, जुम्बा, म्यूजिक, एवरीथिंग. डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर चिल्ड्रन. ये क्लास से लाना, वो क्लास में छोड़ना, ये क्लास से लाना, उस क्लास के बाहर बैठना करते हैं. There are people who do that. Even I know many of them. Children to be master of everything, all trades. It's a phrase in English. So, child should be master in everything. Skating, मेरा बच्चा जाएगा. Drawing, मेरा बच्चा जाएगा. Music, मेरा बच्चा जाएगा. यहाँ पे 25% metro parents हैं, 25% non-metro parents हैं. Panda will do anything for the child. Children should be interested in the course. मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर उन्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए. Will not pressure the child. The child is unhappy with drop off. If the child is unhappy with it, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है ना, मेरा बच्चा नहीं जाएगा. Anything for the child. उसने बोला कि ये सही नहीं है, ये ट्यूशन टीचर सही नहीं, फिनिश, नेक्स्ट ट्यूशन टीचर. Parents start believing the child. Anything for the child. जो बच्चा बोले वही फायदा मालूम सब. उसमें है 15% मेट्रो और 5% नॉन मेट्रो पेरेंट्स हैं. शायद अपने लिए पांडास कोई नहीं है यहाँ पे. पांडास नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि कोई हंस नहीं रहा है. फिर है चीता, चीता वाले पेरेंट्स. वो है हाई एस्पिरेशंस, बट पेरेंट्स डोंट हैव टाइम. Spending money isn't a challenge because parents lack time. Need all the activities at one place or closer to home. And parents aren't required to spend time and effort. All at one place. So these are cheetah. Lion. Academics is very important. Parents will spend a lot of money, time and efforts. Will enroll in the best school in the city. No other activity is required apart from what the school teaches and trains. And they believe that school is everything. So आप eagles है, octopuses है, panda है, cheetah है, lion है, आप ही ढूंढे. Because each one of us, if you ask me, then I am eagle. I was eagle only. और अभी भी मैं eagle ही parent हूँ. Because I believe that academics was very important. I believe. मुझे ऐसा लगता था तो हम सब अलग अलग प्रकार के हैं. बताने का तात्पर्य ये है कि इतने सारे प्रकार हैं. You need to identify where you stand. So, it's a different slide thing, but I wanted you to know कि parenting की different styles होती हैं. So you have to identify आप कौन से style को belong करते हैं.
in the body. There are physiological changes. I was telling you about diabetes, I was telling you about blood pressure, weight gain, forgetfulness. So many symptoms are there. Weight gain symptom है, weight loss symptom है, forgetfulness एक symptom है, palpitations, heart धड़कन, palpitation rate increase होता है, pumping का rate 72 था, normally रहना चाहिए, the pumping rate they call as palpitations, धड़धड़ छाती में धड़धड़ होना, या पोटात बुरा येणे, that Marathi phrase, बहुत जब घबराहट होती है तो ये सब सिम्टम होते हैं, या कान लाल हो जाते हैं बच्चों के, ये भी आपने देखा होगा, बहुत जब एंजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस हो जाती है तो चेहरा लाल हो जाता है, कान लाल हो जाते हैं। फिर तो है चिड़चिड़ापन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, चिड़चिड़ करना, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना, बाहर जाना, फ्रेंड्स आर एवरीथिंग, ये डाउट है मैं इसको फ़ोन करता हूँ, वो डाउट है उसको फ़ोन करना, तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि द चाइल्ड इज अंडर स्ट्रेस। बिहेवियर, चिल्लाना चीखना करके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके हंगामा टाइप का, इमोशंस पूरे टाइम एक फेस बना के बैठना, ये क्या हो गया मेरे साथ, बोर्ड एग्जाम में तो मेरे साथ क्या हो गया, मुझे एग्जाम नहीं देनी है, ऐसे भी काइंड ऑफ फीलिंग, मुझे एग्जाम नहीं देनी है, आप इतना स्ट्रेस में, मैं लिखूंगा ही नहीं एग्जाम में, इतना स्ट्रेस दे रहे हो ना, आई विल नॉट राइट द एग्जाम, आने दो पेपर, मैं ऐसे बैठ के रखूंगा, तो हमको तो स्ट्रेस हो जाएगा, एज पेरेंट हमको भी डर लगेगा कि बच्चा ऐसे बैठेगा तो फिर क्या होगा। नेगेटिव एटीट्यूड, द चाइल्ड सीज एवरीथिंग डार्क, आपने कुछ बोला उसको एक अलग अर्थ लेके अब तू म्हटलं ना आपका मैं अभ्यास नहीं करना, अब तो पढ़ूंगा ही नहीं, कर लो क्या करना है। छोटी छोटी चीजों को लेके पुअर परफॉर्मेंस, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, कम मार्क्स आए तो मूड खराब, पढ़ाई नहीं करना, स्लीप डिस्टर्बेंस, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्लीप वेल, ये सब सिम्टम्स हैं जो दर्शाते हैं कि द चाइल्ड इज अंडर स्ट्रेस। इलनेस, इम्यूनिटी कम हो गई, बहुत सर्दी खांसी हो रही है, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं आगे in my school drills are going on, half of them nosy and big eyes, eyes swollen, immunity has fallen down because of stress, so सर्दी खांसी अभी तो बहुत सब लोगों को सर्दी खांसी चल रही, किसको चल रही, उसी भी को चल रही थी, उस बार किसी को सर्दी खांसी नहीं है, पर बच्चों को तो बहुत हो रहा है क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई है बच्चों की, स्ट्रेस से इम्यूनिटी कम हो गई, so विटामिन सी, नींबू शरबत, lemonade, keep on giving this so that the child is away from illness. Mood swings, ये तो आपको पता ही है, कॉमन ही है, सबके घर में ऐसे चेहरे दिखते होंगे, नर्वसनेस, ऐसे भी चेहरे रहते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एग्जाम स्ट्रेस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर मुझे कुछ नहीं आया तो, मुझे कुछ याद नहीं आया तो फिर क्या होगा, लो सेल्फ एस्टीम, ट्रिगरिंग ऑफ ओसीडी एंड सोशल आइसोलेशन, ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, झूठ बोलना, स्टीलिंग या हरदम चिड़चिड़ापन, वो हैबिट बन जाती है, एक समय का तो हैबिट बन जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है इसको, तो ऐसे सब सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। सोशल आइसोलेशन, किसी से बात नहीं करना, आपने बताया कि नानी के यहाँ जाके पैर छू के आ जाओ या ब्लेसिंग्स लेके आओ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, या आपके फ्रेंड्स आए हैं, आपने किसी कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे कहीं नहीं आना है, तो सोशल आइसोलेशन, बिलीविंग इन सुपरस्टिशंस एंड लक मोर देन हार्ड वर्क, चाइल्ड बिलीव्स कि कुछ सुपरस्टिशन, कुछ जादू ऐसा हो जाए और मेरे मार्क्स आ जाए, कुछ लक, अगर ये कपड़े, बहुत लोगों को रहता है, पर ये मतलब इवन इन माई एज आई हैव सीन पीपल कि कोई कपड़े रखते हैं कि ये वाला कलर हो जाती है, ये साड़ी वो साड़ी है ना, दैट काइंड, सो
एग्जाम में जा रहा है. Of course, even my son did that. मतलब my mother stays with me. तो वो मम्मी को बोलता था, मेरी मम्मी को वो वाली साड़ी पहनो मैं जब एग्जाम का डे होता था. तो in 10th and 12th वो साड़ी वैसे ही रखी गई. 2 साल के बाद वो एग्जाम के टाइम निकाली गई. So ऐसे भी मतलब केसेस रहते हैं. मेंटल हेल्थ इश्यूज, कॉग्निटिव फंक्शंस, याद नहीं आना, डिसीजन मेकिंग, ये करूँ कि वो करूँ, क्वेश्चन करने जाते हैं एक जगह छोड़ देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर लगता है नहीं ये रॉन्ग हो गया, कट कर दिया, उससे क्या हुआ, पेपर अनटाइडी हो गया. तो द चाइल्ड इज कंटिन्यूसली कंफ्यूज्ड. क्वेश्चन तो पेपर में और रहने वाला है, एक करोगे दे सॉल्व करो. दैट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नॉट देयर. फटीग, फिजिकल स्लीप डिस्टर्बेंस एंड सब्सटेंस अब्यूज. अपने लिए सब्सटेंस अब्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज चिल्ड्रन इन चंद्रपुर वुड नॉट बी अंडर ऑल दिस, बट इट इज देयर इन मेट्रोज. सिगरेट है या दोज ड्रग्स विच द चिल्ड्रन टेक, सो इट्स नॉट एप्लीकेबल. सो आइडियाज फॉर एग्जाम डे. अब एग्जाम के दिन क्या करना चाहिए वो भी कर लेते हैं. एग्जाम के दिन work out what you need to take with you on the day of the exam. Organize a night before. पहले दिन सेंटर कितना भी पता है कोई सेंटर रहता है, कोई चेंज नहीं हो जाएगा, केंद्रीय विद्यालय में ही रहेगा. शायद केंद्रीय विद्यालय ही सेंटर रहता है ना 10th के लिए. Eat a good light breakfast. This will help with energy and concentration. Light because the child will be coming back home at 1:30. So or 2 o'clock. So बहुत ना खिलाएं, but light and power packed food give the child breakfast. If you feel yourself getting worried about your exam, spend some time focusing on your breathing. This is for you and applicable for your child as well. Read through the exam paper carefully, underline keywords and instructions. Work out on how long you have each question or section. I think this you must have taken it, given to children. Aim to have time to reread the paper through and make any changes. So, 10 minutes पहले पेपर खत्म होना चाहिए, उसका रीडिंग करना चाहिए, जो कुछ छूट गया है उसको सॉल्व करना चाहिए. तो एक 20 मिनट्स का टाइम या 10 मिनट्स का टाइम एक ब्रीदर टाइम रखना चाहिए. Work on questions that you find easiest first. Watch out for the wordings of questions and make sure that you answer what is being asked. Question बहुत खाली में पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या था और आंसर हमने क्या लिखा है, तो एक बार वो देख ले एक बार, क्योंकि व्हाट पूछा है या विच पूछा है. व्हाट का आंसर अलग हो सकता है, विच का आंसर अलग हो सकता है. So those kind of things. On exam day, keep away from other people who may be feeling anxious or who may say unhelpful comments that make you feel more anxious. So keep away. बहुत लोगों से जाके मिलना एग्जाम के दिन हम नहीं करते. Tips on managing exam stress. You can tell these things to your own child. Plan your study. Schedule your subjects. जो लास्ट पेपर है उसका रिविजन लास्ट में होना चाहिए. फर्स्ट पेपर का रिविजन लास्ट में होना चाहिए. दैट काइंड ऑफ रिवर्स मॉड्यूल व्हाट यू कॉल. शेड्यूल योर सब्जेक्ट्स. टेक डिसिप्लिन ॲक्शन्स. आता मला अभ्यास नाही करायचा आहे, मला करायचाच नाही आहे, यू नो दैट दोज काइंड ऑफ कमेंट्स विच द चिल्ड्रन गिव सम काइंड ऑफ मोटिवेशन टू द चाइल्ड. डू द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट. इफ यू थिंक SST इज वेरी वास्ट, SST वास्ट सब्जेक्ट है, तो बच्चों को बोलो पहले SST कंप्लीट कर ले. Be away from rebuttal people who keep on nagging and passing comments. Avoid distractions. Take right amount of rest. Focus on health, food. Have a positive attitude. Talk to your parents and teachers. Cross-check whether you have done all the preparation, and the rest you need to forget if you have done everything. 5 A's of handling stress. 5 A's. अभी कौन से A's हैं? Avoid. Take control of
टेल द चिल्ड्रन कीप ए वाटर बॉटल नियर द चाइल्ड एंड टेल द चाइल्ड अगेन अगेन एक गिलास पानी पी लो, पानी पी लो, याद दिलाते रहें. Alter, have a well-balanced schedule and be flexible about it. Be accommodative of any changes. Adapt, recognize that things happen, plans alter and emergencies occur. Take a deep breath, keep calm and deal with it when it occurs. तो डीप ब्रीदिंग का एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. मैं तो सोच रही थी मेडिटेशन का 5 मिनट्स का म्यूजिक चलाऊं करके. इफ द ऑडियो दिस थिंग इज देयर, आस्किंग इफ यू कैन, इट इज देयर इन माय मेमोरी. एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस इज द की. लर्न टू फॉरगिव. बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते रहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए. क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आपने ऐसा किया तो बच्चे ने ऐसे करना क्यों जरूरी है? इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. सो लर्न टू फॉरगिव एंड एक्सेप्ट थिंग्स. बीइंग एक्टिव एनहांसेस योर मेमोरी, मूड एंड स्लीप, रिड्यूसेस टेंशन एंड worry. Take a walk of 10 minutes. This may release endorphin, which causes stress. बच्चे के साथ एक घर के बाहर थोड़ा टहल लिया तो that releases a good hormone, endorphin. It releases a good hormone and that hormone can keep the child relaxed. तो डिनर के बाद एक 10 मिनट उतना तो टाइम लगता है because that is basically हम भी खाना खाने के बाद तुरंत बैठते नहीं हैं. तो एक टहल लिया बच्चे के साथ तो बच्चे को भी अच्छा लगता है और at the same time you also feel better. So keep on doing this and don't do this only during the exam. I feel that this everybody should do at all the times. Study the topics difficult first. In first reading itself, try to understand patiently. No last minute adding on new topics as it adds to stress. Study the weightage for the topics and make strategy. Plan a revision schedule in reverse order. Spaced out revision periods. Apply the 80:20 technique. 80% and 20%. For the previous का 20% और new वाला 80%. And there should be proper time management. So maintain strict time boundaries. Make a planner. Make a to-do list. Prioritize logically. Avoid distractions for studies, procrastinations for studies. Avoiding the hard topics. You know this. 8 घंटे नींद जरूरी है पर पावर नैप जिसको बोलते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके. चाइल्ड स्टडी नाउ, बच्चे अगर घर पे हैं 8-15 दिन उनको लगता है कि पावर नैप की जरूरत है 10 मिनट 15 मिनट, let the child sleep. That is not a problem. Practice visualization. ये हम करते हैं. Wonderful. Even I do that. You fall into my category only. जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ सर एकदम हाथ ऊपर करना है, मुझे आपसे बात करनी है. So basically, जो athletes in Olympics or those who run in races, they do this visualization exercise. Now, what is this visualization? You need to close your eyes and understand that you are a winner. आप विक्ट्री स्टैंड पे हो, ये हमको विजुलाइज करना है. तो उसके लिए आप कितना दौड़ोगे? अगर फर्स्ट आना है तो हमने वो पिक्चर हमारे ब्रेन में आना चाहिए. If I want to see my child, or if the child wants to see his or her photograph in the newspaper for the merit list, the child has to visualize कि वो newspaper दिखवा और उसका वो जो merit list and my name is there. And what it needs to do that. So when you do this, actually law of attraction भी आपने सुना होगा, रॉन्डा फाइन की बुक है law of attraction. अभी तो ऑडियो बुक हिंदी, इंग्लिश, मराठी and all languages it is available. They say that you start thinking and things happen. जो आपको चाहिए है वो मिल सकता है. You want to purchase an Audi and BMWs at home, you need to have
पिक्चर्स एवरीवेयर, 10 ऑडियंस लेना है मुझे. I'm just giving you example, materialistic बोल रही हूँ मैं. But you want peace of mind, you need a vacation, you need a cool kind of environment. Keep those pictures here and there put in your room. Things happen. और ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ मैं कि मुझे कहना है और मुझे बुलाया है. ऐसा हुआ है लोगों के साथ, ऐसा होता ही है. Believe me, this happens and this has happened with me as well. I don't know. मैं किस तरीके से मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा खुद की बड़ाई कर रहे हैं, बट आई डोंट नो किस तरीके से मैं आपको ये बात समझाऊं. Recently, I have been nominated to give trainings in foreign countries. I always had this in my agenda. मेरे bucket list जिसको बोलते हैं, कि एक मेरी bucket list रहा करती थी कि मुझे ना ऐसे international forum पे जाके trainings लेना है. ये मतलब तो मैं खुद को ऐसे देखती थी कि I'm standing I'm in a foreign country and where I feel कि why Indians would not get a chance. तो मेरे को कहीं chance. So 5 people have been nominated all over India. And I have more clues and more connections how things happen. And it has happened with me. तो मुझे लगता है कि सभी के साथ हो सकता है. ये सबके साथ हो सकता है. But only thing is right things need to come. You know, मैं खुद को विजुअलाइज करती थी और हर दिन करती थी और अभी भी करती हूँ. अभी भी मैं यहाँ पे हूँ, पर मेरे लिए जब थॉट्स जाते हैं तो लगता है कि नहीं, ये फोरम पे तो मुझे एक बार चांस मिलना है. हाँ, आई थिंक वो काम करता है, बट यू नीड टू बिलीव इट. अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो कभी नहीं हो सकता है. यू हैव टू बिलीव इन मिरेकल्स, यू हैव टू बिलीव इन दिस. एक्सरसाइज रेगुलरली, ये तो आप शायद करते हैं. ये मुद्रा जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज ज्ञान मुद्रा. बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब मैं बहुत बिलीव नहीं करती हूँ, पर मैं ये मुद्रा पे बहुत बिलीव करती हूँ. सो यू जस्ट पुट हस्त मुद्रा इन योर मोबाइल्स, you will get these kind of mudras. So with meditation, they say when you do this, when you touch your thumb and your first finger, put them together. This is called as mudra. योगा में ही आता है हस्त मुद्रा जिसको कहते हैं. तो ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा. So this builds in concentration. तो हम योगा में बैठते हैं तो आपने हरदम देखा होगा ऐसे बैठा जाता है. तो क्यों बैठते हैं ऐसे? तो उसका तो कोई रीजन होना चाहिए. इवन हार्ट अटैक के लिए भी मुद्रा है. कैन यू बिलीव? अगर इफ यू वांट टू अवॉइड एन हार्ट अटैक, यू नीड टू it avoids you never have heart attack. So there are even you can serve now also. ये सब mudras आप देखेंगे, हस्त मुद्रा या hand mudras, you will know that for concentration there is a mudra. It's there. So of course cycling, walking, all these things, they release a good hormone, and this hormones brings down stress. Listening to music, घर में म्यूजिक थोड़ा सा टाइम चला गया, बच्चे को भी म्यूजिक की तरफ आपने लेकर जाना चाहिए. नॉट दैट जैज काइंड ऑफ म्यूजिक, बट फॉर सम टाइम देयर शुड बी सम म्यूजिक, सम मंत्रास. इफ यू बिलीव, जो भी गॉड को आप बिलीव करते हैं, कुछ मंत्रास लगा दिया तो दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू बीट स्ट्रेस. हेल्दी डाइट, देयर आर सर्टेन फूड्स, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं which bring up stress. I don't know whether you know that. कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं, कुछ आइटम्स हैं which increase stress. Spicy food, it increases stress because basically digestion के लिए बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी लगती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए. So therefore if you remember, मैंने healthy light breakfast कहा था. बहुत स्पाइसी ना दे during on the day of the exam, otherwise digestion पहले ही stress, और स्ट्रेस से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में जो होता है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. सो इट कैन इंक्रीज एसिडिटी. व्हेन द चाइल्ड कम्स होम, द चाइल्ड विल हैव वॉमिटिंग, विल नॉट बी एबल टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट पेपर. बच्चे ने कितना भी बोला कि मम्मी ऐसे नहीं, ये आलू की सब्जी
रस्से वाली बनाओ बहुत पसंद है ना, पनीर बनाओ बहुत पसंद है, बट देन यू शुड नो कि राइट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस कितने डालना है और कितना लाइट करना है. सो हेल्दी डाइट इज द की फॉर कीपिंग इवन द स्ट्रेस levels down. Use positive thinking and imagery and affirmations, that is positive self-talk. खुद को बताते हैं कि all is well. तो all is well वाला जो गाना है वो लगा तो सकते हैं थोड़ा टाइम, तो everything is all is well. Everything is within my control. Find a support system. मैंने एक तो बात कह रही है कि एक फोन कॉल पे कोई फ्रेंड है तो बता दिया अपना पूरा स्ट्रेस, तो ठीक है, अच्छा लगता है. You have somebody to talk. So this is all from my end. Now I want you to ask me questions. And give one direction. I am very trying to show you are showing experimental change gives even the egg up. And due to that change, agar eagerness, agree, given you also talk about arguments. So every parent will all efforts on our kids to give directions and motivations and encouragement. But what is the role of kid? Madam, they also have some responsibility to recognize the role of parent. Yes, agree. Yes. But at the same time, the mobile becomes very amazing how to handle this situation. But already you have given parent not giving proper sensitive. This is not a matter of sensitivity matter. Because all the things are very much matured in this. Every 10 student, every I think mobile also handled. But out of that, apart from Yes. that, your kid no more. Yes. How can we can say that your kid is not? So how to change? I expect this thing from your side. किसने फोन दिया बच्चों को? किसने फोन दिया? किसने मोबाइल दिया? किसने डेटा डाला उसमें? This is कोविड COVID-19 and government focusing on that. थी. Right? Okay. But government not doing anything. Even then, after overall complete proper situation, even those schools, even though college, not school, doing everything on homework, even though assignments on mobile, we are giving a Question to you is when the child is in 9, 10, 11, 12, 11, 12 we are not talking of, we are talking of 9, 10, 10 for that matter. Sit with the child when you are giving the phone to the child. The child says कि मुझे अगर ये वीडियो देखना है, मैथ्स में ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री का कैसे सॉल्व किया मुझे देखना है, तो आप बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों से मोबाइल ले लीजिए. कैसे एग्रेशन रहेगा? अगर बच्चों को बताया कि मोबाइल आपका टाइम छीनता है, छीन लेता है आपका टाइम, एंड दैट इज नॉट गुड, यू नीड टू फोकस. तो बच्चों को पहले तो पता चले कि उनका फोकस शुड बी 90+. डोंट गिव द चाइल्ड मोबाइल, बट इफ यू वांट टू गिव, अगर स्कूल होमवर्क बताती है तो बच्चों को बताइए उनको क्वेश्चन आंसर ग्रेविटेशन चैप्टर के कंप्लीट करने का. ये वाला असाइनमेंट आया है मैथ सब्जेक्ट में, दैट यू नीड टू कंप्लीट. एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट करना है, कल नोटबुक सबमिट करना है. हम भी भेजते हैं एज स्कूल में ना, तो हम बच्चों पे अगर देते हैं तो पेरेंट्स लोग हमारे तो प्रैक्टिस नहीं, आज मैं बोल रही हूँ तुम्हें होमवर्क दे देना है. सो हमारी जिम्मेदारी एज स्कूल में. तो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, ये हर जगह हो रहा है. ये यहाँ पे हो रहा है, तो ये वर्धा में हो रहा है, और ये मुंबई में बहुत ज्यादा हो रहा है. सबसे पहले तो ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि हम मोबाइल किस बात के लिए दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल में तो कोरोना था, तो ये तो वैश्विक ही प्रॉब्लम थी, तो उधर भी है इधर भी है. अब हम क्या कर रहे थे, इनका काम ये बहुत अच्छे से कर रहे थे. दे आर सेंडिंग मटेरियल्स एंड ऑल दैट, एंड वी आर स्टिल स्टडिंग ऑल्सो. तो बच्चे को तो वो है ही 2 साल में. अब
इसके बाद जो जिम्मेदारी स्टार्ट होती थी हम लोगों की कि हम उनको मोबाइल में कितना टाइम देते। आपने कभी ये भी देखा है कि बच्चा क्या क्या देख रहा है, कौन सी साइट पर विजिट करता है, स्नैपचैट पर कितनी स्नैप्स भेजता है, कौन सी भेजता है? क्योंकि मैम तो बहुत अच्छे से बता रही एंड शी इज गिविंग ट्रिमेंडसली गुड जॉब, पर साथ में ये हमारी जिम्मेदारी भी तो है कि बच्चा चिड़चिड़ा क्यों कर रहा है, क्योंकि हर एक उनके जो बिहेवियर चेंजेस है वो 8, 9 और 10th में होना ही है, क्योंकि ये बॉडी ही उनकी रिस्पॉन्स करती है उस तरीके से। 5 मिनट में वो चिड़चिड़े होते हैं, आप अभी कुछ बोलोगे थोड़ी देर के बाद वो कुछ अलग बोलेंगे, और यू आर कॉन्स्टेंटली बैंगिंग ऑन दैट कि यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। अब उनके माइंड में क्या क्या चल रहा है? स्टडी का प्रेशर, मम्मीने मला हे म्हटलं त्याचं प्रेशर, तू तर चांगली मुलगी नाही, तू व्यवस्थित वागत नाही, वगैरे वगैरे, आणि मैत्रिणी स्नॅप पाठवत आहे ऍट द सेम टाइम। मैत्रिणी सुंदर सुंदर की हा मी हे पिक केली, त्यांची अशी पोज, त्यांची तशी पोज, तर ती बिचारी ह्या डायलॉगमध्ये पण आहे की बाकीचे सगळे वर हॅव्हिंग व्हेरी गुड टाइम अँड आय एम ऑल्सो स्टडी। मग त्यातल्या त्यात तो जो मुलगा बिचारा चिडचिड करतो ना, त्यात आपला पण नंबर असतो, आपणही ते प्रिकर्सर म्हणून ऍड होतो। आपण त्यांना काय करतो, तू अभ्यास करत नाही, तू अभ्यास नाही करत असंही बोलतो, मोबाईल त्यांना देतो, आणि खरं सांगा काही वेळापर्यंत पॅरेंटही असेच करतात, त्यांना मोबाईल देतात आणि आम्हाला फेसबुक बघायचं आहे करतात। आम्हाला थोडंसं मम्मी लोक सुद्धा मला पण थोडासा एक मी टाईम हवा आणि मी पण थोडं बघणार आहे, पण मग मुलं पण आपले थोडा वेळ मोबाईल बघतात आणि हे नंतर सॅच्युरेशन होतं, पायटअप होतं त्यांच्यात। मग आपल्याला हे दोन्ही बाजूने बघायला पाहिजे। कोरोनाच्या काळात जी प्रॉब्लेम होती ती सर्वांची होती, ती सॉल्व्ह झाल्याच्या नंतर तुम्ही किती वेळ त्यांना देता। आणि मॅडम मगाशी तुम्ही स्लाइडमध्ये दाखवताना म्हटलं होतं की काही गोष्टी आपल्याला द्यावं लागताना आपण त्यांना ब्राईब करतो। इथे आय जस्ट वॉन्ट टू ॲड वन थिंग, जर काही थोडंसं आपल्याला त्यांच्यापासून चांगलं हवं असेल तर काही पॉझिटिव्हली त्यांना आपण म्हणू शकतो, हां तू हे थोडं कर, तर आय विल गिव्ह यू रिवॉर्ड्स फॉर दॅट। तर जेव्हा पॉझिटिव्ह रिवॉर्ड्स म्हणतात तर ते खूप सुंदर पद्धतीने करतात। मॅम तुम्ही क्लास टीचर आहात तर तुम्हाला प्रत्येक मुलगा माहिती आहे की कोण कसा आहे। काही मुलं चिडचिडी असतात, काही स्वतःहून करणारी पण असतात, आणि काही लोक अजिबात काहीच करत नाही, ते पॅरेंटला दोष देतात। तर यात जो पॅरेंटला दोष देणारे असतात ना, त्यात पॅरेंटचं थोडंसं कुठे ना कुठे चुकलं आहे, त्यांनी थोडं मान्य करून घ्यावं आणि मग नंतर विचार करावं की आता आपण काय करू शकतो याच्यात। म्हणजे आता ते फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू एक्सेप्ट दॅट प्रॉब्लेम अँड देन ओनली यू कॅन फाइंड आउट द सोल्युशन। जर तुम्ही एक्सेप्टच नाही करणार की माझा मुलगा चिडचिड करतो वगैरे वगैरे जे काही आहे, तर मग तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कसं करणार आहे? आणि हे प्रत्येक घरात काही हदपर्यंत 8वी 9वी 10वी त्यांच्या शरीरात इतके फिजिक, इव्हन फॉर दॅट मॅटर मुलींमध्ये जो मेन्स्ट्रुएशनचा पिरियड स्टार्ट होतो ना तेव्हा त्या चिडचिड्या होतात, जेवण त्या व्यवस्थित करत नाही, आणि त्यांचं मग आपण त्यांचं वेगळे प्रॉब्लेम सुरू असतात। तर थोडं आपण समजून घ्यावं की हे असे असे प्रॉब्लेम्स होत असतात। तो थोडासा असेल आता असा, तो काही वेळाच्या नंतर होऊन जाईल, आपण थोडं समजून घ्यावं की नाही होऊन जाईल, पण तुम्ही लागलीच त्यांच्यावर ओरडायलाही लागणार आणि तुम्ही जर एक्सपेक्ट कराल की हो ते आता खूपच एक्सेलेंट करतील, तर असं नाही। विड्रॉवल पण करू नका, अगदीच मोबाईल काढून घ्याल ना तर मग तोडफाड करणार तो, कारण त्याला आता माहीत झालं आहे। ग्रॅज्युअल प्रोसेस। अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन देखकर। मैं खुद टीचर हूँ, मुझे ऐसा लगा जो आपने ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन के जो पॉइंट्स बताए हैं, आई थिंक जो स्कूल टीचर्स हैं इन लोगों ने बच्चों को जो है ये पूरे पॉइंट्स, वेरी नाइस पॉइंट कि स्कूल टीचर्स ने बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए पूरे पॉइंट। तो वो जो पॉइंट जो बताया गया मैंने ये सब पॉइंट हमने बच्चों पे ट्राई किया। So I want to talk about aggressiveness of children. So what happened? Generally 90% parents have one child, and they are showing all kinds of love, excess love we can call it. And remaining 10% parents, 2 children. So what happened?
in childhood we are giving them mobile. They are habituated to it. But when time comes like 9, 10, 11, 12, that time we are shouting. But who make them habituated? We parents only. Okay, so our generation was different. And this generation, they are getting mobile from childhood only. So they are really habituated. And it is really difficult to remove this habit from them. And as a parent, we are feeling proud that my child knows better than me about mobile. What I don't know, they know. And as a parent, we are feeling proud. So it is really difficult. I think so. Thank you. It is a pathetic condition where we feel that child knows more than me because the child has been with the mobile what you and me have been with. तो उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है तो कितने ऐप्स है, कहाँ पे क्या मिलेगा, कौन सी साइट पे क्या मिलेगा, वो उनका रिसर्च ज़्यादा हो चुका है. शायद हम भी एज पेरेंट्स सोचते हैं इनफैक्ट इवन आई आस्क्ड माय चाइल्ड फिर ये ऐसे हो रहा है जस्ट फाइंड आउट व्हाई माय फोन इज हैंगिंग, ज़्यादा डेटा हो गया है, इसको डिलीट करो, ये करो, वो करो. तो ही डज इट वेरी फास्ट एंड आई फील वेरी प्राउड व्हाट ही वाज सेइंग. She's done a wonderful job with all the teachers. They are doing a wonderful job teaching our children. But I would like to focus on one thing that some of the reading habits of the children, they are not reading textbooks. NCERT should be, they should read, they should write. Nowadays, more focus is on visualizing, all gadgets. And most of the time they are on the phone, they are on we are doing e-learning. So most of the time we are providing everything to them, spoon feeding. So it's better let them think, let them read, let them visualize, which we used to do. We never had these gadgets. So it's more important that children, you invite that habit in your children that they should read and they should start asking questions. Like you have to spend a little bit time, at least for half an hour. And I did with my son, and it helped a lot. And now I have two children, but both are different. One is very aggressive, one is very quiet. So you have to handle them accordingly. And the thing is that it helps a lot because my child, till 5th standard, he was very aggressive, he was very naughty, but then I started talking to him. That is counseling, you have to start at home. We have equal responsibilities, even the teachers have responsibility as well as we have the same responsibility. We have to talk to children, the first thing. At least sometime in your schedule, in a day, at least remove some time to talk to your child and see to it that not about studies, in general. So he becomes comfortable. And then that helps a lot
then अभी हम सारे पेरेंट्स 21 यानी 15 फरवरी से एक बड़े मिशन पे जा रहे हैं। अब सारे पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रेस में हो गए, वो उनके लिए एक मिशन मंगल है। तो मैं उनके लिए पेरेंट के लिए कुछ कहना चाहूँगा। ये राजा छत्रपति और राजा जयसिंह के बीच का कन्वर्सेशन है, 2 लाइन है, और आपकी परमिशन हो तो मैं करूँगा। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तारीफ से पहले खुदा बंदे को खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। once again, on behalf of all of you, I thank you for spending your valuable time, a Sunday in fact, coming over to Chandrapur and giving such a wonderful session. One more, so thank you, ma'am. Not only the parents, we teachers also definitely have got a good lesson how to manage stress. So we are definitely going to give some of your points to our children also.